application software example, Chrome, right? Many application software are available, but 2 or 3 examples we have to give. The next one is database. What is database? Database means collection of data. The example क्या होगा? Example of database, data storing files. Like take an example of computer system only. Different drives are created, C, D, E. Okay. So that drive C, D, E contains some files only, files, folders. तो क्या है? It is an example of data only. Okay. Database means simply collection of data. An example में you can write data stored in files. Data stored in files. Okay. Next component क्या है? Physical component. Procedures. क्या है? Procedures. See, procedures means what procedure you can apply in an organization for the functioning of the system. ठीक है? तो basic procedure में क्या आएगा? क्या what we can include? User instructions. User instructions रहेगा. See, if I want to complete some transaction, तो एक procedure है वो. To complete some transaction, some procedure we have to follow, right? तो प्रोसीजर कंप्लीट होने के लिए फर्स्ट वी हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन. यूजर इंस्ट्रक्शन देगा उसको, मींस यूजर कोई आइटम को बाई करेगा. ओके, तो प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप है, राइट, नोट डाउन दिस पॉइंट. 3 major types of procedures are required. 3 major types of procedures are required. The 3 major types of procedures क्या है? First one is user instructions. First one is user instructions. Then second procedure is instructions for preparation of input. Instructions for preparation of input. Instructions for preparation of input. By data preparation personnel. By data preparation personnel. Online students also note down these points. Instructions for preparation of input by data preparation personnel. Here note down. Third procedure is operating instructions. Operating instructions. Operating instructions for computer operations personnel. Operating instructions for computer operations personnel. See, what do you mean by personnel? People involved in an organization to carry out some activities. उसी को personnel बोलते हैं. Personnel means people involved in an organization to carry out some activities. Okay. तो procedure में see first क्या 3 major types है. User instructions. User instruction means first user will give the command. तो एक procedure complete होने के लिए user will give the command, right? तो first क्या है? User instructions, right? Second है instructions for preparation of input. After giving the command to prepare input ready करने के लिए क्या देंगे हम लोग? इंस्ट्रक्शन देंगे. पर्सनल जो है, ठीक है, पर्सनल क्या करेगा? मींस पीपल जो इन्वॉल्व है वो किस लिए इंस्ट्रक्शन देगा? इनपुट को रेडी करने के लिए. समझ रहे? इनपुट रेडी करने मींस इनपुट फीड करने के लिए सिस्टम में क्या लगेगा? फर्स्ट वी हैव टू कलेक्ट द डेटा, वो सब आएगा. Then third step is operating instructions for computer operation personnel. See, user instructions पास हो गया, जो इनपुट है वो एंटर हो गया सिस्टम में. लास्ट स्टेप ये हमारा डेटा को एनालाइज करो. ठीक है, सब देखो पॉइंट क्या लेगा? ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस. ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस मींस फॉर एग्जांपल तुमको टोटल करना है, या तुमको फॉर एग्जांपल एवरेज निकालना है, या कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है पर डे वो निकालना है. तो ये सब के ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस है.
ये सब क्या है? ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन से। तो फाइनल प्रोसीजर कंप्लीट कैसे होगा? फॉर एग्जांपल व्हेन यू वांट टू बाय समथिंग ऑनलाइन, तो प्रोसीजर कब कंप्लीट होता है? आफ्टर द ऑनलाइन पेमेंट, आफ्टर द पेमेंट, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है, आफ्टर द पेमेंट ओनली द प्रोसीजर विल बी कंप्लीटेड। ओके, तीसरी लास्ट पॉइंट ये है कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, अगर तुम बाय बाय बटन पे क्लिक करोगे, सक्सेसफुली हो गया, तो मीन्स वो बाय का बटन वो क्या है? तुम्हारा ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग का काम कर रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो 3 पॉइंट्स कौन सा प्रोसीजर कंप्लीट होने? यूजर इंस्ट्रक्शंस, लाइक आई हैव सर्च फॉर द मोबाइल, I have given the instruction na to the system, right? User instruction. The next point is instructions for preparation of input. वो कैसे होगा? बैकएंड में होगा, ठीक है। इफ आई हैव सर्च फॉर मोबाइल, तो अकॉर्डिंग टू द जो भी रेट है उसका स्पेसिफिकेशंस है, उसके अकॉर्डिंग आएगा इनपुट फ्रॉम द डेटाबेस। लास्ट स्टेप है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस मींस तुम्हारा बाय का बटन, बाय जो परचेज का बटन रहेगा ऑनलाइन। ओके, ये ऑफलाइन कर रहे हो तो आफ्टर दी पेमेंट, आफ्टर मतलब पेमेंट करने के बाद तुम्हारा जो डेटाबेस है, किसके पास? डेटाबेस प्रोग्रामर के पास जो डेटाबेस है सिस्टम का, उसमें मेंटेन हो जाएगा। तो वी कैन से दैट ये 3 स्टेप्स में प्रोसीजर कंप्लीट हो सकता है, रफली 3 स्टेप्स में कोई भी प्रोसीजर कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट टाइप इज ऑपरेटिंग पर्सोनल। नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट कंपोनेंट, नेक्स्ट फिजिकल कंपोनेंट इज ऑपरेटिंग पर्सोनल। ओके, तो ऑपरेटिंग पर्सोनल मींस, ऑपरेटिंग पर्सोनल, पर्सोनल मींस पर्सन जो वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो ऑपरेटिंग पर्सोनल में बहुत सारे, ऑपरेटिंग पर्सोनल मींस जो ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग पीपल, दोज आर ऑपरेटिंग द सिस्टम, दोज आर इन्वॉल्वड इन फंक्शनिंग फॉर द सिस्टम। ओके, तो बहुत सारे आएंगे, कोई डेटाबेस प्रोग्रामर होगा ऑर्गेनाइजेशन में, कोई नेटवर्क एनालिस्ट होगा, कोई सिस्टम इंजीनियर होगा, कोई वेब डिजाइनिंग करेगा, तो बहुत सारे क्या है? ऑपरेटिंग पर्सोनल है। ओके, एग्जांपल नोट डाउन करो ऑपरेटिंग पर्सोनल के। स्क्रीन शेयरिंग में विजिबल है, एग्जांपल्स नोट डाउन कर लो 2 और 3। पर्सनल लाइक कंप्यूटर ऑपरेटर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, system analysts, system managers are the operating people of the information system. डन? पूरा मत लिखो, शॉर्ट में लिखो बस, ताकि याद रहे बाद में क्या स्टडी किए थे, क्या कवर हुआ था लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट, नेक्स्ट फिजिकल कंपोनेंट है इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट, हेडिंग दे दो इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट में क्या आएगा? एग्जांपल लिखो इनपुट एंड आउटपुट का। प्रिंट आउट्स, रिपोर्ट्स, प्रिंट आउट्स कॉमा रिपोर्ट्स एक्सेट्रा डाल दो आगे। इनपुट एंड आउटपुट एग्जांपल है प्रिंट आउट्स एंड रिपोर्ट्स। हम लोग क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एमआईएस, राइट? तो स्ट्रक्चर ऑफ एमआईएस कितने में क्लासिफाइड किया हम लोगों ने अभी? बेस्ड ऑन फिजिकल कंपोनेंट, और भी क्लासिफिकेशन है, तो ये फिजिकल कंपोनेंट्स हैं ये सब। स्ट्रक्चर ऑफ एमआईएस लिखो और उसके अंदर ए डालो, ए, क्योंकि और भी क्लासिफिकेशन आएंगे उसके अंदर। ए में क्या लिखे तुमने? बेस्ड ऑन फिजिकल कंपोनेंट्स। फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या इंक्लूड किए? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, प्रोसीजर्स, ऑपरेटिंग पर्सोनल,
इनपुट एंड आउटपुट। अब बी लिखो, बी स्ट्रक्चर एमआईएस का बी पार्ट क्या है? बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग फंक्शन, बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग फंक्शन। ये स्क्रीन में विजिबल नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं नोट से पढ़ाऊंगी ताकि पॉइंट्स तुमको दिखे। तो बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग फंक्शन में टाइप से, जैसे बेस्ड ऑन फिजिकल कंपोनेंट के टाइप से, वैसे बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग फंक्शंस में फर्स्ट आएगा टू प्रोसेस ट्रांजैक्शन, टू प्रोसेस ट्रांजैक्शन। सिर्फ साइड पॉइंट नोट डाउन कर लो, हेडिंग्स जो टू प्रोसेस ट्रांजैक्शंस based on processing functions में first one is to process transactions, second to maintain master files, to maintain master files, third one is to produce reports, to produce reports, fourth one is to produce inquiries, to produce inquiries, and last fifth point is to process interactive support application, to process interactive support applications. See, based on processing function, ठीक है। अभी MIS है, MIS मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कुछ इंफॉर्मेशन है, सिस्टम है और उसमें बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व है कोई टास्क को कंप्लीट करने के लिए, राइट? इसी को MIS बोलते हैं। तो MIS में फिजिकल कंपोनेंट्स भी है। फिजिकल कंपोनेंट मींस रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, ऑपरेटिंग पर्सनल, इनपुट एंड आउटपुट, ओके। देन कुछ प्रोसेसिंग फंक्शंस भी है। प्रोसेसिंग फंक्शंस के फॉर एग्जांपल टू प्रोसेस ट्रांजैक्शंस। कि ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स, क्या ट्रांजैक्शन के रिक्वायरमेंट्स होंगे? डायरेक्ट अ ट्रांजैक्शन टू टेक प्लेस। Direct means direct a transaction to take place. First, we have to give the command for the transaction, right? Transaction complete होने के लिए to perform some transaction, we have to give the command. Okay. Then after giving the command, confirmation page आएगा, right? Confirmation page or you can say report. Report will be generated after giving the command. Report will be generated. Then रिपोर्ट जनरेट होने के बाद हमारा जो ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू द डेटाबेस, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू द डेटाबेस, ओके। फॉर एग्जांपल, व्हाट एग्जांपल यू कैन गिव इन ट्रांजैक्शन? परचेसिंग एनीथिंग, ओके, और बाइंग एनीथिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन एक ही टाइप है, ठीक है। तो परचेसिंग एनीथिंग, परचेसिंग एनी प्रोडक्ट, एग्जांपल ऑफ क्या है? ट्रांजैक्शन। तो सिंपल स्टेप्स में लिख सकते हो। तो प्रोसेस ट्रांजैक्शंस क्या क्या है? फर्स्ट क्या करना है हम लोग को? कमांड देना। फर्स्ट वी हैव टू गिव द कमांड। आफ्टर गिविंग द कमांड, सेकंड स्टेप क्या है? रिपोर्ट और कंफर्मेशन पेज। रिपोर्ट और कंफर्मेशन पेज के बाद क्या होगा? योर ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इनटू द डेटाबेस बाय द डेटाबेस प्रोग्रामर और द पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द डेटाबेस, राइट? और एग्जांपल क्या लिखोगे? परचेसिंग एनी प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप क्या है कंपोनेंट? टू मेंटेन मास्टर फाइल, टू मेंटेन मास्टर फाइल्स। सी, मास्टर फाइल का मीनिंग सिंपली इंपॉर्टेंट फाइल। मास्टर फाइल्स मींस
important file. Okay, like historical data. In master file, historical data are stored. Historical data means पूरा ऑर्गेनाइजेशन का डेटा स्टोर्ड इन दी मास्टर फाइल. अब कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज जो है, उनका जो डेटा होगा, एक्सपीरियंस, ऑल आर इंक्लूडेड टू द मास्टर फाइल. लेट अस कंसीडर कि कोई पर्सन जॉब लीव करता है, ठीक है, तो उनका भी डेटा मास्टर फाइल में रहेगा. मींस पास्ट डेटा आल्सो आर स्टोर्ड इनटू द मास्टर फाइल. ठीक है, तो मास्टर फाइल्स वी कैन से दैट मास्टर फाइल्स क्या है, is it stores permanent or historical data. ये two keywords are very much important from exam point of view. Master files क्या store करता है? It stores permanent or historical data. Permanent means we are not deleting the data from the master file. Okay, so permanent or historical data. Historical data means all the data. जितने भी डेटा है, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म है, ऑल आर स्टोर्ड इनटू द मास्टर फाइल. लाइक योर मेन सर्वर, जैसे गूगल का मेन सर्वर होगा कोई, तो जो गूगल हम लोग एक्सेस करते हैं, कोई उसका मेन सर्वर होगा जहाँ पे पूरा डेटाबेस स्टोर्ड है. तो मास्टर फाइल के पूरे ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो ब्रांचेस होंगे, सबके डेटा कहाँ पे एक मास्टर फाइल में स्टोर किया गया. तो फाइल में जो नॉर्मल फाइल नहीं होगा वर्ड, एक पूरा डेटाबेस होगा. ओके, what example you can give in master file? बहुत सारे एग्जांपल आएंगे. डेटा स्टोर होता है उसमें. write down the example of master file. For preparing an employee's salary, for preparing an employee's salary, for preparing an employee's salary, required data items are, for preparing an employee's salary, required data items are basic pay, पे करना. ओके, बेसिक पे, कॉमा, अलाउंसेस एंड डिडक्शंस. For preparing an employee's salary, required data items are basic pay, allowances and deductions. See, master files it stores permanent or historical data, right? So when transactions are processed, कोई भी transaction होता है, तो master file क्या करता है? Master file data items are updated. मास्टर फाइल क्या होता है? अपडेट हो जाता है. व्हेनेवर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, तो मास्टर फाइल क्या होता है? अपडेट होता है. अपडेट मींस वो डेटा मास्टर फाइल में जाके स्टोर हो जाता है. ओके, तो एग्जांपल जैसे फॉर प्रिपेयरिंग अ एम्प्लॉय सैलरी, अभी कोई भी एग्जांपल दे सकते हो. सिंपल एग्जांपल, एम्प्लॉय का सैलरी के लिए बेसिक पे होगा, अलाउंसेस होगा, कुछ डिडक्शंस लगेंगे. ओके, तो ये सब जो है एम्प्लॉय को सैलरी देने के बाद वो मेंटेन होगा डेटाबेस में, मास्टर फाइल में आके मेंटेन हो जाएगा. ओके, any मतलब another example also you can give. Simply इतना याद रखना, मास्टर फाइल स्टोर परमानेंट और हिस्टोरिकल डेटा. इसी देखो, फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन कैपजेमिनी, ठीक है, अगर तुमने वो कंपनी लीव कर दी है और नेक्स्ट कंपनी तुमने ज्वाइन की है, इन्फोसिस, फिर अगेन यू आर कमिंग टू कैपजेमिनी ओनली, तो उनके पास डेटा रहेगा कि नहीं रहेगा तुम्हारा कि हमारा पहले का एम्प्लॉय है? समझ में आया बात? कैपजेमिनी में तुम वर्क कर रहे हो, कैपजेमिनी में, और इन्फोसिस तुमने लीव करके इन्फोसिस चले गए, इन्फोसिस कंपनी. ओके, कि अगेन यू आर कमिंग बैक टू कैपजेमिनी, तो उनको याद रहेगा कि हमारा एम्प्लॉय का पहले का? यस और नो? यस रहेगा, बिकॉज रिकॉर्ड आर मेंटेनिंग इनटू द डेटाबेस. पूरे रिकॉर्ड मेंटेन रहते हैं. तो मास्टर फाइल का मीनिंग यही है कि रिकॉर्ड से क्या है, वो रिकॉर्ड से वो हम लोग डिलीट नहीं करते हैं जब तक उसमें मतलब वेस्ट रिकॉर्ड नहीं, उसको डिलीट नहीं किया जाता है. तो ये पॉइंट याद रखो, मेन कीवर्ड्स है परमानेंट और हिस्टोरिकल डेटा. नेक्स्ट टाइप क्या लिखे बताओ?
To produce reports. See, there are two types of reports. Scheduled reports, important point है, exam point of view से अभी तुमको बता रही हूँ. Two types of reports है, scheduled reports and special reports. Scheduled reports and special reports. Online students, are you able to understand? Reply in the chat box. Yes, ma'am. Okay. See, to produce reports, there are two types of reports: scheduled reports and special reports. Scheduled reports are produced on a regular basis. Scheduled reports means the reports which are produced on a regular basis, like weekly, monthly, or yearly. Right? The scheduled reports means reports which are produced on a regular basis. Okay. Special reports means reports which are produced quickly. Reports which are produced quickly based on unscheduled request. Reports which are produced quickly based on unscheduled request. Based on unscheduled request. See, scheduled reports means reports which are produced on a regular basis. Like college का example है लो, कल्चरल एक्टिविटीज होगा, स्पोर्ट्स होगा, अदर देन एजुकेशन, अदर एक्टिविटीज क्या क्या है, स्पोर्ट्स है, देन कल्चरल एक्टिविटीज होगा, और क्या है, कुछ पता है तुमको कॉलेज के बारे में? स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज है, एनएसएस है, फिर डीएलएलई है, तो डिफरेंट एक्टिविटीज है, राइट? तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज जो परफॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल ये मंथ में संस्कृत हुआ, ठीक है, संस्कृत, तो संस्कृत तो हो गया, पर उसका एक रिपोर्ट रेडी करना पड़ता है कॉलेज को, ठीक है, तो फिर वो रिपोर्ट क्या करना पड़ता है, मेल करना पड़ता है जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को. तो वैसे ही शेड्यूल रिपोर्ट मींस कंपल्सरी रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट रेडी करना पड़ता ही है हमें. समझ रहे हो? अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ, कोई भी एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, तो एसवाई में कितने स्टूडेंट्स अपीयर किए, कितने एब्सेंट थे, ठीक है, कितनों को ओ ग्रेड मिला है, तो ये सब जो रिपोर्ट जनरेट होता है, ठीक है, सेमेस्टर वाइज, वो मेल किया जाता है हायर अथॉरिटी को, राइट? तो उसका एग्जांपल है शेड्यूल्ड रिपोर्ट का एग्जांपल है, जो कंपलसरी रेगुलर बेसिस पे, शेड्यूल्ड बेसिस पे, शेड्यूल मींस उसको करना ही है काम 3 मंथ्स में, 2 मंथ्स में, ठीक है, कंपलसरी वर्क है वो. अभी कॉलेज में तो कंपलसरी क्या हुआ, एग्जाम तो कंडक्ट करना ही है, राइट? तो शेड्यूल्ड रिपोर्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस. रेगुलर मींस डे टू डे नहीं है, वीकली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है. स्पेशल रिपोर्ट्स, ठीक है, स्पेशल रिपोर्ट्स मींस जो अर्जेंट बेसिस पे बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट और बेस्ड ऑन द डिमांड जो क्रिएट होता है, वो स्पेशल रिपोर्ट है. लाइक सम एम्प्लॉय वांट्स मेडिकल लीव, फॉर एग्जांपल, तो मेडिकल लीव क्या है, इट इज एन इमरजेंसी कंडीशन, किसी को पहले से पता नहीं है, ठीक है, एनी टाइम इट कैन अकर, तो ये तुम्हारा स्पेशल रिपोर्ट हुआ, राइट? तो स्पेशल रिपोर्ट मींस अनशेड्यूल्ड रिक्वेस्ट, वो हम लोग को पता नहीं कब रिपोर्ट रेडी करना पड़ेगा, उसका कभी भी आ सकता है. ओके, लास्ट पॉइंट क्या है, प्रोसेस इंक्वायरीज, राइट? लिखा है कि नहीं लिखा है? टू प्रोसेस इंक्वायरीज, यहाँ पे स्टॉप करेंगे. See, inquiries may be regular inquiries और ad hoc inquiries. Inquiries की भी दो टाइप है, और ये टाइप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो inquiries may be regular inquiries और ad hoc inquiries. Ad hoc पता है ना, AD स्पेस देके HOC लिखो.
इंक्वायरीज कैसे होंगे? रेगुलर इंक्वायरीज एंड एडहॉक। सी एडहॉक इंक्वायरीज मींस जो पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है, जैसे हमारा स्पेशल रिपोर्ट है वैसी एडहॉक इंक्वायरी है, ठीक है, जो पहले से प्री डिफाइंड नहीं किया हुआ है उसको सिस्टम में, ठीक है, वो कभी भी एनी टाइम आ सकता है वो इंक्वायरी, दैट इज एडहॉक इंक्वायरी, ठीक है। और तुम्हारा रेगुलर इंक्वायरी में क्या होगा? सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉइज है, बहुत सारे एक्टिविटीज है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा, सप्लायर का डिपार्टमेंट होगा, देन ट्रांसैक्शन का डिपार्टमेंट होगा, कोई अकाउंटेंट होगा, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। लाइक तुम्हारा डिपार्टमेंट है बैग, बीएमएस, बीएससीआईटी, है ना? तो ये सब सी, तो रेगुलर इंक्वायरीज में ये एम्प्लॉय ने कितना, उनका वर्किंग आवर्स कितना था, यही सब होगा ना इंक्वायरी में मेंटेन होगा। देन किसने लीव लिया आज, ठीक है, कितना वर्क कंप्लीट हुआ, कितना प्रोडक्ट सेल हुआ, तो ये सब पर डे बेसिस में होगा, दैट इज रेगुलर इंक्वायरी, ओके। और तुम्हारा एडहॉक इंक्वायरी में कुछ भी ऐड कर दो, लाइक कोई कस्टमर का कंप्लेंट आता है, दैट इज एडहॉक इंक्वायरी, ठीक है। या बाहर से तुम्हारा डेटा कुछ लीक हो गया है, तो सडन बेसिस पे मालूम पड़ेगा, अर्जेंट बेसिस पे हम लोग उस पर इंक्वायरी करेंगे, फिर कौन सा डेटा लीक हुआ है, विच पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीकिंग द डेटा, ये कौन सा इंक्वायरी हुआ? एडहॉक इंक्वायरी। मुझे पता था पहले से कि ये डेटा लीक होने वाला है, नहीं, तो वो एडहॉक इंक्वायरी, ओके। तो टाइप्स याद रखो, इंक्वायरीज के दो टाइप्स है, रेगुलर एंड एडहॉक इंक्वायरीज। इट्स इनफ फॉर टुडे। क्या कवर किया हम लोगों ने? स्ट्रक्चर ऑफ एमआईएस में इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, टू टाइप्स नहीं और भी टाइप्स है। कौन से दो टाइप है फिलहाल बताओ? बेस्ड ऑन फिजिकल कंपोनेंट एंड बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग फंक्शंस, ओके। क्योंकि स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एमआईएस, तो बहुत कुछ आएगा इसमें। एक ऑर्गेनाइजेशन को रन होने के लिए बहुत कुछ एक्टिविटीज लगेगा, राइट? तो बेस्ड ऑन फिजिकल कंपोनेंट्स एंड बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग फंक्शंस। तो बेस्ड ऑन फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या था? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, ऑपरेटिंग पर्सोनल, procedures, input and output, and based on processing functions to process transactions, to maintain master file, to produce reports, to process inquiries. Okay, last point कौन सा? interactive support application ना, that we will see in the next lecture. Any doubt online students and offline also? अब दो टैग मिले ना, तो ऑनलाइन ऑफलाइन। नो